Good morning students, welcome in my YouTube channel, and today I will discuss with you about the complex permanent tissue. Last time I discussed with you about the simple permanent tissue. Here we have complex. The meaning of permanent tissue is same as we have discussed in the simple permanent tissue. But what is in complex? Complex means here the tissue, the shape, the structure of the tissue will not be the same. In other words, we can say two or more than two different types of cells will combine together, and they will work together, and they will achieve one particular task. So that is the meaning of the complex permanent tissue that I have written also. So this complex permanent tissue are made up of more than one type of cells. All these cells coordinate to perform a common function. आप देखिए यहाँ पर सभी cells जो डिफरेंट टाइप के सेल्स आए हैं कंबाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जांपल्स इन केस ऑफ प्लांट टिश्यू. जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू. बोथ ऑफ देम आर कंडक्टिंग टिश्यूज and constitute a vascular bundle. Conducting tissues means through which water, minerals and food will be supplied. So these vascular bundles are essential for complex plants to survive in the terrestrial environment. ये जो vascular bundle हैं ये जरूरी है complex plant को terrestrial environment में survive करने के लिए, because जो 100 मीटर तक के प्लांट हैं उनको अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर, मिनरल्स और फूड को सप्लाई करने के लिए ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, कंडक्टिंग टिश्यू हैं, दीज आर एसेंशियल्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दैट इज द जाइलम. सो यू सी दिस जाइलम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सम हार्मोन्स. हियर दैट हार्मोन नेम इज द साइटोकाइनिन. You will read that cytokinin in class 10. So now it consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Means इस complex permanent tissue में tracheids हैं, vessels हैं, xylem parenchyma हैं और xylem fibers हैं. बट यहाँ पर ये जो tracheids हैं और जो vessels हैं ये दो pipe like structure हैं. And this xylem parenchyma, this is the living cell, this is the supporting cell and it stores food also. And this xylem fiber, it is the dead cell. ये dead cell है जो 100% मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं फाइबर्स. That is the sclerenchymatous tissue. So the cells have thick walls. जो xylem के cells हैं इनका wall thick है, and many of them are dead cells. तो many of them are dead cells में ये जो xylem fibers हैं ये dead हैं, ठीक है. Tracheids and vessels भी dead हैं, लेकिन xylem parenchyma लिविंग सेल्स हैं. ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्रैकिड्स एंड वेसल्स क्या है? तो पाइप लाइक, जैसे मैंने आपको बताया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट. आप देख सकते हैं नीचे, दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली. ये जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, बिकॉज दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर. एंड इन द नेक्स्ट page you will see the diagram also. Here you can see the picture. So parenchyma stores food, as I have told you, fibers supportive. Now you see the structure of the tracheids and vessels. This is the structure of the tracheids and this is the structure of the vessels and this is the structure of the xylem parenchyma. अब आप कहेंगे कि sir why not you have drawn the diagram of the xylem fibers? So these are the fibers like structures, so no need to draw it, that's why I have not drawn. So you see this is the pipe like structure, this is also pipe like structure. Here somewhere pits are present, means fine गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर है, that's we called pits. And this is the xylem parenchyma, it is a living cell, cytoplasm, nucleus we can see here. So now we will discuss about the phloem. So this phloem, it is completely responsible for the transportation of food, and here sucrose is transported in the form of food. So first glucose is synthesized by the process of photosynthesis, and after the formation of glucose, that glucose will be converted into sucrose, that we call sugar, that we utilize in our kitchen, that is sucrose here. Amino acids
hormones, ions, etc. from leaves to different parts of the body. My dear students, please mind it. So from leaves से प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है. सपोज अगर मान लें कि ये कोई ट्री है, these are the various branches, और मैं यहाँ पर एक लीफ बना रहा हूँ. Here from this leaf, here in this leaf, इस लीफ में सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा. एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सुक्रोज, फर्स्ट ग्लूकोज विल बी सिंथेसाइज्ड, देन सुक्रोज विल फॉर्म सुक्रोज, एंड दिस सुक्रोज विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फ्लोएम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री. सो देखिए ये सुक्रोज पेड़ में नीचे भी आएगा और पेड़ में ऊपर भी जाएगा. दैट्स व्हाई इट्स डायरेक्शन इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि इसको प्लांट के हर एक पार्ट में जाना है, ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, हर जगह फूड को सप्लाई देना है. दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इट्स मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इट्स मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल. यू कैन सी हियर इट इज मेड अप ऑफ 4 types of cells here also. So here the name of the cells are different: sheath tube cells, companion cells, and the rest 2 name are same, that is the parenchyma and fibers. Only you have to write phloem. So phloem, parenchyma and phloem, fibers. In xylem we have seen xylem, parenchyma and xylem fibers. Here parenchyma, phloem, parenchyma, phloem fibers. So the function of the phloem, parenchyma and phloem fibers same, but the function of the sheath tubes and companion cells, it is new for us. So let's discuss this sheath tube and companion cells. So you see sheath tubes. So in this sheath tubes you can see they are tubular cells with perforated walls. How these are perforated, we will see the structure just after this. They have no nucleus, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा. एंड देयर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय कॉम्पिनियन सेल्स, और इनका एक्टिविटी कॉम्पिनियन सेल से कंट्रोल होता है. तो आप कहेंगे सर कॉम्पिनियन सेल्स कहीं और होगा और ये कहीं और है, तो इसका एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होगा? योर क्वेरीज आर राइट, बट यहाँ पर कॉम्पिनियन सेल्स और sheath ट्यूब सेल्स ब्लोसम फ्रेंड की तरह हमेशा एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और इस तरह से कॉम्पिनियन सेल्स को sheath ट्यूब सेल्स की मदद करने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होता है. एंड इन दिस वे दिस कॉम्पिनियन सेल्स completely control the activities of the sheath tube cells, isn't it? So food is transported through sheath tubes only. इसको भी ध्यान रखिएगा कि फूड केवल और केवल that is the sucrose जो है sheath tube सेल से ही ट्रांसपोर्ट होता है, कॉम्पिनियन सेल से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है. Now we will see the structure part. Now you see the structure. So the first structure you can see here, the first structure, this is the structure of the sheath tube, tube like structure. और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीव, देखिए SIEVE, सीव, सीव का मतलब ये होता है छन्ना, है ना. तो यहाँ पे सीव प्लेट्स प्रेजेंट है जिससे होकर यहाँ से क्या होता है, ये जो फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं. ठीक है, अब इस पिक्चर को देखेंगे. इस पिक्चर में आप देखिए ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया ये कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था. यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया LS, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन. तो यहाँ पे आप देखिए ये सीव प्लेट्स हैं, ये जो 1 2 3 4 इस तरह से दिखाया गया सीव प्लेट्स हैं. इसी सीव प्लेट से बीच में गैप है और इस गैप के बीच से होकर ये फूड पास करते रहते हैं. क्लियर? सो यहाँ पर ये सीव ट्यूब सेल्स हैं. सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है. दिस आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द प्लास्टिड. ठीक है, और बाकी जो भी है फ्लूइड इस होकर के यहाँ से देखिए नीचे से ऊपर ये ऐसे पास करेगा सीव प्लेट्स के बीच से. यहाँ से भी ये ऊपर जा रहे होंगे. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और यहाँ पर देखिए ये कॉम्पिनियन सेल्स से अटैच्ड है जैसा मैंने आपको बताया था. और कॉम्पिनियन सेल्स आप देख सकते हैं मैंने रेड से दिखाया, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक बड़ा सा वैक्यूल भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है. तो इस तरह से sheath ट्यूब सेल्स को कॉम्पिनियन सेल्स रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं. बट द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द sheath ट्यूब टू कैरी आउट द न्यूट्रिएंट्स, टू कैरी आउट द फूड मटेरियल्स, इजंट इट? अब आप देखिए इस डायग्राम को. ये डायग्राम थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, बट इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, वेरी इजी. आप लेफ्ट साइड डायग्राम को देखिए. लेफ्ट साइड डायग्राम मैंने दिखाया जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स हम पढ़ चुके हैं. तो जाइलम वेसल्स से क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इजंट इट? तो वाटर यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है लगातार. यहाँ पे आप देखिए सीव फ्लोएम सीव एलिमेंट्स है. तो फ्लोएम सीव एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे दिखाया जैसा अभी आप पहले पिक्चर में भी देखें. यहाँ पे इससे अटैच्ड ये अटैच्ड कॉम्पिनियन सेल्स, इजंट इट? ये भी कॉम्पिनियन सेल्स, ये भी कॉम्पिनियन सेल्स. और कॉम्पिनियन सेल से अटैच्ड है सोर्स सेल. सोर्स सेल का मतलब है वैसे सेल जहां पर फूड का फॉर्मेशन होता है. फूड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? प्लांट के सेल में.
तो प्लांट के सेल हैं, तो प्लांट के सेल में फूड का फॉर्मेशन हुआ, ये फूड यहाँ आया और यहाँ से सीव ट्यूब सेल में गया और सीव ट्यूब सेल से फिर ऊपर चढ़ते हुए प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में गया, नीचे भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है। तो एक्चुअली वी हैव टू लर्न अबाउट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, और हमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में इतना ही जानना है इस लेवल पर कि जाइलम फूड वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोएम फूड को, इजंट इट। जो रेस्ट मैकेनिज्म है, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, यू विल रीड इन क्लास 10 की वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे हो जाता है, बिना किसी पंपिंग मैकेनिज्म के, बिना किसी मोटर के, बिना किसी और किसी डिवाइस के, इजंट इट। सो यू विल रीड इट। एंड मैं यहाँ पर आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ओनली, और एक ट्रांसपिरेटरी पूल है जो काम कर रहा होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, isn't it? And for the transportation of food, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स एनर्जी कंजम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ये फूड प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट लीव से होते रहते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे विथ अस। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।